आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, दैट इज खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। अफगानिस्तान इज स्टिल इन द हंट or race for the semi-finals, though they'll have to play two more matches which are going to be tough, one from Australia and another from South Africa. So both the team are in good forms right now. Australia had to suffer some injury or some personal reasons. It has been confirmed by our sources that Maxwell and Marsh will not be part of today's game, which is going to be played between Australia and England. Two very good team. You all know how good they are when they play Ashes in the World Cup. They have been brilliant so far. Afghanistan played a fantastic cricket yesterday. They defeated Netherlands very convincingly by 7 wickets. It was Netherlands who won the toss and decided to bat first. Scored 179 for the loss of 10 wickets in 46.1 overs. And in reply, 46.3 overs, I think. In reply, Afghanistan were 55 for 2, and then after they recovered beautifully. 179 for 3 only. Shahidi played a good knock, fine knock, as I said earlier. It will be his day. He showed the class. And then another player, Azmatullah, I think is Omarzai is the name, who also played a fine knock of 32. Shahidi made 50 odd runs, 56 I think, if I'm not wrong, and Gurbaz was the man to be dismissed early, just scoring 10 runs. Ibrahim Zadran played a part of small knock, 22, and it was critical performance by Afghanistan to beat Netherlands. Yes, Netherlands is not out of the tournament completely, but again, it is going to be difficult for them to qualify for the semis. Now, if I talk about the today's match, there will be two matches, Pakistan versus New Zealand, which is the highly rated match because both the team will try to follow up their lucks, how they are going to play. And most important thing is that it's about to be rain as far as the Bangalore is concerned. So Pakistan will have to be a bit more conscious if it rains at all. It will be only New Zealand who will be benefited. So this is the first match, and second match of the day will be played between England and Australia. Let's see what the result is going to be. Let's expect some fair cricket as far as two matches are concerned. Now, as always, I am joined by my guest or cricket expert as far as Radio Tashan is concerned, Mr. Ramkishan ji from Lucknow. Welcome back on the show. Good morning. जी हाँ, सभी को सुप्रभात और तमाम सुनने वालों को मेरा प्रेमपूर्ण अभिवादन। Before I start, I hope everybody will be doing fine because it was an earthquake yesterday night at 11:36 p.m. 6.4 was the scale of a reactor. I really hope everything will be in control. It was started from Nepal and covered all India, at least Bihar, Delhi, Ghaziabad, everywhere. It was just shivering like, what you can say, earthquake. People were coming out from their home in the night. It was quite distracting, but again, things looks clear, no damage done, so everything is in control. Now coming back to the cricket, which we are going to discuss. Yes, Afghanistan versus Netherlands. मतलब एक्सपेक्टेड था कि अफगानिस्तान अच्छा करेगी, हालांकि नेदरलैंड्स के साथ फिर भी वही कहानी दोहराई गई। 92 पर 6 होने के बाद 179 तक गई। इसका मतलब ये हुआ 79 + 8 इज इक्वल टू 87, अगर मैं ठीक हूँ। यस, 87 रन बनाए आखिरी के 4 विकेटों ने। अक्सर ये इस विश्व कप में हमने देखा है, जब भी नेदरलैंड्स खेलती है उनके 4-5-6 विकेट बड़े सस्ते में गिर जाते हैं, और उसके बाद जब लोगों का टेल शुरू होता है तब नेदरलैंड्स की बैटिंग शुरू होती है। ये एक अजीबो गरीब चीज है, लेकिन है। तो एडवर्ड्स ने कुछ खास योगदान दिया नहीं। एक नए नवेले प्लेयर आए बैरसी करके, उन्होंने भी अपना 1 रन का योगदान मात्र दिया। ओपनिंग करने आए थे विक्रमजीत सिंह की जगह पे,
लेकिन खास कुछ हुआ नहीं, परिवर्तन शायद उनको भाया नहीं नेदरलैंड्स को। विक्रमजीत सिंह अच्छे प्लेयर हैं, भारत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। फिलहाल उनको कल रेस्ट दिया गया था, वो टीम में नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि नेदरलैंड्स को ओपनिंग विकेट के लिए शुरुआत अच्छी नहीं मिली। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 73 रनों के आसपास की, और फिर ताश के पत्तों की तरह विकेटों की छड़ी लगनी शुरू हुई। एब्सोल्युटली यस। बल्कि उनकी पूरी पारी में 4 रन आउट हुए, जो किसी भी समय किसी भी तरह के फॉर्मेट में बड़ा डिफिकल्ट होता है उसके बाद वहां से वापस आना। सो नेदरलैंड नेवर केम बैक फ्रॉम दैट कोलैप्स, और वो मिला जुला के कुल 179 रन बनाए, जो कहीं से भी ज्यादा था नहीं अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए। जिस तरह से क्लिनिकली वो खेल रही है अभी 3 4 5 6 मैचेस में, वो मुश्किल लक्ष्य नजर नहीं आ रहा था एक नजर में। लेकिन 2 विकेट जब गिर गए 55 रन पे, ऐसा लगा शायद अफगानिस्तान भी एक कोलैप्स ना कर जाए। लखनऊ जो हमेशा से जाना जाता रहा है, सेकंड बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है वहां पे, लेकिन अफगानिस्तान ने सूझबूझ से क्रिकेट खेली और नेदरलैंड्स को हरा दिया। फिलहाल अभी भी सेमीफाइनल के रेस में बने हुए हैं। क्या लगता है, नेदरलैंड्स दबाव में ज्यादा थी या फिर अफगानिस्तान ने बढ़िया क्रिकेट खेली? नहीं, अफगानिस्तान ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, बढ़िया क्रिकेट खेली। वो लखनऊ में खेलते आ रहे हैं, उनको वहां की मिट्टी का अंदाजा हो चुका है। और जो इस मैच में जो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, शहीदी को देना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर पे बराबर खेल रहे हैं और काफी लाजवाब परफॉर्मेंस आ रही है। और बाद में शहीदी ने भी कहीं न कहीं उसी काम को आगे बढ़ाया और 2 अर्धशतक देखने को मिले शहीदी के और रहमत शाह के। तो ये सीन रहा। अफगानिस्तान ने बढ़िया क्रिकेट खेली। हाँ, नीदरलैंड एसोसिएट देशों में आता है और नीदरलैंड ने बिल्कुल 92 पे 6 होने के बाद भी 179 तक गया, बहुत बड़ी बात थी। और उन कोलैप्स के बाद गया जो एक साथ 2-2 विकेट गिर जाना, उसके बाद निश्चित तौर से अफगानिस्तान ने भी 55 पे 2 खो दिए अपने प्राइम बैटर इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। उसके बाद शहीदी और रहमत के बीच साझेदारी हुई, साझेदारी टूटी, फिर हसमत आए और उन्होंने भी 33 रन जोड़े और पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को उन्होंने जीत दिलाने में पूरी भूमिका का निर्वाह किया और कोई और क्षति नहीं होने दी। अभी फिलहाल अगर सिनेरियो की बात करूं तो पाकिस्तान से ऊपर है अफगानिस्तान, ये ना भूलें आप। हालांकि अफगानिस्तान के पास 2 मैचेस और हैं, पाकिस्तान के पास भी मैचेस हैं, लेकिन बनस्पत अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो पाने के लिए ही है। और पाकिस्तान की अगर बात करें आप, उनके जो पॉलिटिकली हालात हैं इस तरह देश में इस समय, उनके पास तो सब खोने के लिए ही है, पाने के लिए भी कुछ नहीं बचा उनके पास। क्योंकि वो बीच टूर्नामेंट में उनके सेलेक्टर का इस्तीफा दे देना, तमाम सारी चीजें अभी छन छन के आ रही हैं बाहर से। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान मतलब करे भी तो क्या करे। चलो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हो तो समझ में आता है, कई बार आपका साथ आपका कलर ऑफ होता, तमाम सारी चीजें होती है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करें और बीच टूर्नामेंट में अपनी टीम को आप छोड़ दें। तमाम सारी चीजें जो हो रही नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज एक महत्वपूर्ण मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि जबरदस्त टीम है। न्यूजीलैंड अच्छी लय में है, हालांकि लगातार मैचेस हार कर आ रही है, और शायद उसका जो प्रेशर है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक छोटी सी विंडो दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या उस विंडो को तोड़ के पाकिस्तान रूम में घुस सकता है अंदर या नहीं। ये बस सिर्फ देखने की बात है। अदर देन दैट, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कभी भी कमबैक कर सकती है, तो उनको भी हल्के में लेना ठीक नहीं। शायद विलियमसन को इस मैच में भी ना खिलाएं ये लोग, न मालूम क्यों विलियमसन को रखा है। खेलने की बात चल रही है। अच्छा, अगर खेलने की बात चल रही फिर तो ठीक है। अदर देन दैट, न जाने क्यों विलियमसन को रखा, कुछ पता नहीं। उनको मैच खिलाते नहीं है, स्टैंडिंग कैप्टन किसी और को बना दिया, तो फिर विलियमसन को स्क्वाड में रखा ही क्यों था भाई। अगर ये मान लिया जाए कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बचा के रख रहे हैं,
एक प्लेयर जिसको मैच प्रैक्टिस ना मिले लगातार, वो बड़े मैच में जाके अच्छा करे, ये गारंटी तो नहीं है ना इस बात की। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आई खास कर न्यूजीलैंड की। हाँ, निश्चित तौर से यदि विलियमसन फिट हैं तो विलियमसन को खिलाना चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन विलियमसन पूरी तरह से फिट नहीं थे। हाँ, फिर भी जो न्यूजीलैंड 389 वाले लक्ष्य में जो 384 तक पहुंचा, जो 383 तक पहुंचा, वहां तक जो है पहुंचाने में भी केन विलियमसन का मोटिवेशन देने में बहुत बड़ा हाथ था। बार बार इशारे से बताना कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद विलियमसन खेलेंगे, क्योंकि एक क्रंच मैच है। यदि न्यूजीलैंड यहाँ से फिसला तो वापिस आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैथमेटिकली न्यूजीलैंड 12 अंक तक जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया मैथमेटिकली 14 अंक तक जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का और श्रीलंका के मैच है, तो छोटे मैच नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। श्रीलंका अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन ये भी ध्यान रहे पथुम निशंका 4 अर्धशतक लगा के आ रहे हैं। एक और बात बता दूं, मैट हेनरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं हैमस्ट्रिंग के जरिए, और उनकी जगह काइल जेमिसन की रिप्लेसमेंट का ऐलान हो गया है। बहरहाल हमने अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन किया था पिछले शो में कि कौन टीम कहाँ खत्म करेगी, किसके जीतने से किसका फायदा होगा, किसके हारने से किसका नुकसान होगा। इन सब चीजों पर हमने कल या परसों वाले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब अगर आज के सिनेरियो की बात अगर की जाए, तो जो अफगानिस्तान ने कल एक और मैच जीता ना, समीकरण थोड़े बदल से गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, आप ये बताइए, सिनेरियो को हम छोड़ दें और कल जो हुआ, आपको क्या कभी लगा कि नीदरलैंड मैच में है या आ सकता है? नहीं, मतलब जब अफगानिस्तान चेज करने आया, जब वो 2 विकेट उनके गिरे ना, वो एक मौका था और उन्होंने उसको भुनाया नहीं। उसके बाद से ऐसा कभी लगा नहीं कि नीदरलैंड्स, और पहली बात तो जब उनकी स्टार्ट इतनी खराब थी ना, लगातार विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि नीदरलैंड्स कभी वापस आएगा गेम में या नहीं, दैट वाज अ डिफिकल्ट पॉइंट टू बी मेड आउट। अच्छा, दूसरी चीज, जब नीदरलैंड के गुरबाज आउट, अफगानिस्तान के गुरबाज आउट हुए, 10 रन आई थिंक बनाए गुरबाज आउट हुए, तो आपको क्या लगा कि आउटसाइड चांस है यार अफगानिस्तान को हराने का? नहीं, जिस तरह से अफगानिस्तान पिछले कुछ मैचेस में खेलता आया, वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि अफगानिस्तान यहाँ से हार जाएगा। निश्चित तौर से खैर हुआ भी यही। 55 पे 2 होने के बाद एक साझेदारी बुनी गई, 50 प्लस की वो साझेदारी हुई, और उसके बाद वो मैच कंफर्टेबली 7 विकेट से अफगानिस्तान ने बहुत अच्छे से मैथमेटिकली उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई किया और 7 विकेट से मैच जीत लिया। 2 अर्धशतक रहे, शहीदी और रहमत के अर्धशतकों की बदौलत जीत लिया, और नबी को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। खैर, और अफगानिस्तान ने 8 अंक अर्जित कर लिए हैं, यानी 4 मैच जीत गया है। 7 में से तो 2 मैच बचे हैं उनके, एक अफ्रीका से एक ऑस्ट्रेलिया से है। 2 में से कोई एक मैच कम से कम अफगानिस्तान को जीतना होगा यदि सुपर 4 की दौड़ में बने रहना है। तो अब चलते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरफ। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेला जाएगा ये मैच, और इस मैच से जुड़ी हुई काफी घटनाएं हुई हैं,
जैसे कि डेविड विली ने, आप सबको पता ही है, संन्यास का ऐलान कर दिया था। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले मैक्सवेल चोटिल हुए, शायद स्क्वैश या फुटबॉल कोई गेम खेल रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहां उनको चोट लगी और उसके बाद खबर आई कि मिच मार्च भी सीधे पर्थ की फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। जब कारण पूछा उनकी मैनेजमेंट से तो उन्होंने कहा जी वो पर्सनल रीजन से गए हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो डबल झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये कहें कि जो प्लेयर बैठे थे उनके लिए मौका भी है। और उसमें आपको बताऊं, कुछ कमेंट भी लिखे गए थे। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मार्नस लगुशेन ने लिखा, उसके बाद वार्नर ने लिखा, डबल इमोजीज डाल दी खुशी की, फिर जो रूट ने अपनी तरफ से रिएक्ट किया। तो ये सब कुछ फंडे हैं एक दूसरे का ध्यान भटकाने के, लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दबाव में होगा। हालांकि एक मैच वो यहाँ से सीधे सीधे जीत रहे हैं, बांग्लादेश का मैच, लेकिन इंग्लैंड को ये मैच हर हाल में जीतना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में यदि क्वालिफाई करना है तो जो इस विश्व कप की 8 नंबर तक की टीमें होंगी, ध्यान रहे वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। जी एब्सोल्युटली। एक नया नियम 2021 में पारित किया गया था, वो ये कि 2023 के विश्व कप में जो टीमें चोटी के 8 नंबरों तक रहेंगी, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक के स्पॉट की, वही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है के लिए क्वालिफाई करेगी। हालांकि इंग्लैंड के ना खेलने से फर्क पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान में उनके समर्थक भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैचेस पाकिस्तान में हो रहे तो भारतीयों को बहुत वीजा मिलेगा नहीं, आप समझ सकते हैं। जब पाकिस्तान के दर्शकों को वीजा कम मिला है तो भारत के दर्शकों को वीजा कम ही मिलेगा। एक चीज हो सकती है, टैक्टिकली पाकिस्तान शायद वीजा भारतीयों को दे दे, वो इसलिए कि उनके जो आर्थिक हालात हैं शायद सुधर जाएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को लोग धर्म की तरह समझते हैं, पूजा करते हैं क्रिकेट की। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान ने वीजा दिया, मुझे लगता है उनकी न केवल आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक होगी, बल्कि टूर्नामेंट की लोकप्रियता में भी 4 चांद लग सकते हैं। बहरहाल अभी वो दूर की कौड़ी है, फिलहाल हम वर्ल्ड कप पर हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए यस, इट्स अ डबल सेटबैक। मिचेल मार्श एंड ग्लेन मैक्सवेल, these are the two players who are in prime form right now. Maxwell played a fantastic knock of 106 runs, if I'm correct, on 44 deliveries. So he can be an asset on his day. अगर मिचेल मार्श की आप बात करें, गुड ऑलराउंडर, यू नो, वेरी गुड बॉलर एज वेल, गुड बैटर, तो वो कुछ भी करते हैं आगे और अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है ये डबल सेटबैक है। और हाँ, ठीक कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से तो सीधे से जीत रहा है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी कह देना बड़ा मुश्किल काम है, वो केवल मुझे लगता है क्रिकेट की तौहीन होगी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है। बांग्लादेश कोशिश जरूर करेगा कि उनको कुछ चुनौती दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर कम से कम नहीं आ रहा है। निश्चित तौर से इंग्लैंड भरपूर प्रयास करेगा, ये मुझे लगता है। और अब ये अंतिम बार, अब की बार है ना, बस अंतिम बार यही उनकी लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड तरस रहा है एक जीत के लिए, वो कहीं से मिल नहीं पा रही है उसको, और अब हताश हो गया है, अब कुछ खोने के लिए है नहीं। तो मुझे लगता है फियरलेस क्रिकेट ही एक रास्ता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जी, यही रास्ता होना चाहिए, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस।
जी अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, राइट। ये जो कहावत है ना क्रिकेट में, ये क्रिकेट में ही नहीं जिंदगी में भी लागू होती है भाई साहब, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि आप इसको अगर हमेशा जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो इसके कई दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस कहावत को क्रिकेट के लिए छोड़ दें, लेकिन कई बार ऐसे नौबत आती है जिंदगी में जब आपको अटैक करना पड़ता है डिफेंसिव बनने के लिए भी। खैर, भारत किसी पर बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भारत का मैच कल है और अफ्रीका से जबरदस्त मैच होगा, इसकी पूरी संभावना है। रही बात आज के मैचेस की, तो आज किसी एक मैच में आपको विनीत गर्ग की कमेंट्री सुनने को मिलेगी, तो दिल थाम कर बैठिए, न जाने कौन से मैच में विनीत गर्ग की आवाज आपको सुनने को मिल जाए। हाँ, वो पहला तो मैच भी हो सकता है, दूसरा मैच भी हो सकता है। ये बताइए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की ही हम बात करें, तो आपको क्या लगता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मुझे लगता है इंग्लैंड दबाव में है पूरी तरीके से, लगातार मैचेस हारता आया है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स का आज दिन होगा और शायद ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़े। ऐसे मुझे गट फीलिंग है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इट लुक्स लाइक दैट इंग्लैंड is going to be favorite today. Yes, Australia is a great team. They have been in a prime form in the World Cup, but again, as we know, two setbacks for Australia: Mitchell Marsh and Glenn Maxwell. These are two players who will not be the part of the side. अब वो नए जो दो चेहरे हैं वो कौन आएंगे, क्या है उनकी परफॉर्मेंस पीछे, और कितना वो समझते हैं इंग्लैंड को, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी आई थिंक इंग्लैंड विल बी फेवरेट टुडे। यदि हम बात करें कौन आएंगे, ये यदि इस मुद्दे पे हम बात करें तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। वार्नर के साथ 3 पे मार्नस लगुशेन, 4 पे स्मिथ, 5 पे जॉश इंग्लिश आएंगे, संभवतः 6 पे या कैरी खेलेंगे या ग्रीन खेलेंगे, और 7 पे स्टोनिस। कुल मिला के ये 3 लोग हैं, कैरी, स्टोनिस और ग्रीन। 3 में से 2 को खेलना चाहिए संभवतः, और ये भी ध्यान रहे उस्मान ख्वाजा भी संभवतः स्क्वाड में है। हाँ, स्क्वाड में तो है, लेकिन उनको खिलाएंगे कि नहीं ये बस चर्चा का विषय केवल हो सकता है। स्क्वाड में तो है, नो डाउट। तो आपको क्या लगता है मिच मार्च की जगह कौन आएगा? नहीं, वहां तो कैमरन ग्रीन ही, वहां तो कैमरन ग्रीन आई थिंक आना चाहिए, बट ट्रेविस हेड पिछले मैच में खेले थे, मुझे लगता है। बिल्कुल एक जबरदस्त पारी भी खेली थी उन्होंने, शतक मारा था उन्होंने। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उनको बाहर करना तो ठीक नहीं है। नहीं, ट्रेविस हेड तो रहेंगे। मैक्सवेल की जगह कौन आएगा? ये एक विषय हो सकता है चर्चा का। आई थिंक किसी ऑलराउंडर को देखेंगे, उनके पास कोई स्क्वाड में है तो स्टोनिस है। हाँ, तो बस स्टोनिस ही आएंगे। अगर स्टोनिस स्क्वाड में है तो उनके अलावा और कोई नहीं आएगा जी। तो मार्गा स्टोनिस खेलेंगे आई थिंक। अच्छा, इस मैच में मैंने बहुत बात कर ली। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, उसको हम यूं ही हल्के में ले नहीं सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वो दोनों टीमों के हिसाब से, बट पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये। न्यूजीलैंड के लिए तो जो है वो है, बट पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये। अच्छा, एक हल्कों में खबर आ रही है कि यदि ये मैच बारिश में धुलता है, क्योंकि बेंगलोर का मैच है ये। हाँ, बरसात की 68% चांसेस हैं वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, एक एक अंक दे दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में आई थिंक पाकिस्तान के पास अभी एक मैच और भी है, और मैच तो न्यूजीलैंड के लिए भी एक बचा हुआ है, राइट? तो शायद न्यूजीलैंड ज्यादा नुकसान में रहेगा बनस्पत पाकिस्तान। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, एक बार पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें, सुनिए, मुझे लगता है
पाकिस्तान ज्यादा नुकसान में रहेगा। इसका कारण है न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीत लिए हैं मगर पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा था ना कि पॉइंट टेबल पे अंक कितने हैं। पाकिस्तान के 8 अंक, न्यूजीलैंड के 8 अंक है, पाकिस्तान के 6 हैं, राइट। तो न्यूजीलैंड पहुंचेगा 9 पे, पाकिस्तान पहुंचेगा 7 पे। अच्छा, हम यही कल डिस्कस कर रहे थे, राइट। और अगला मैच श्रीलंका से है न्यूजीलैंड का। आई होप श्रीलंका अच्छा खेले और मैं उम्मीद करूंगा पथुम निशंका ने 4 अर्धशतक लगाए हैं। कुशल मेंडिस के साथ मिल करके वो श्रीलंका को कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे ले जाए। अच्छा, एक चीज है जो मुझे लगता है कि आपके लिए आज के 2 मैच हैं, 2 मैचों में से एक मैच कौन सा महत्वपूर्ण जाता है? I think Pakistan versus New Zealand. This has more significance. अच्छा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, Right. कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के आधार पे कहना असंभव सा लगता है। बड़ा मुश्किल विषय है कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमों के परफॉर्मेंस ऐसे ही है कमोबेश। फिर भी अगर एक किसी के साथ जाना हो, अगर आप मेरी विश पूछेंगे तो कुछ और होगी, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कुछ और होगा। दोनों बताइए। ऐसा लगता है न्यूजीलैंड जीत सकता है, बट आई विश कि पाकिस्तान जीत जाए, ताकि कहीं किसी तरह से एक अगर मैच और मिल जाए भारत का। बोल रही हैं ये इमोशन बोल रहे हैं, भावनाएं बोल रही हैं। अच्छा, एक प्लेयर बताइए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड से रचिन रविंद्रा, और पाकिस्तान से इमामुल हक का दिन होना चाहिए आज। इमाम खेलेंगे भी या नहीं? अगर इस पर सस्पेंस है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। या फकर जमान पिछले मैच में खेले थे इमाम की जगह पे, राइट। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में शादाब और नवाज सारे फिट हैं, आई थिंक किसी को कोई समस्या है नहीं। I'll go with बड़ा मुश्किल विषय है। आई थिंक बाबर आजम के साथ जाना चाहिए मेरे को। वो डिपेंडेबल प्लेयर है और उनसे आप अच्छे रन्स की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं रिजवान के साथ जाऊंगा। आप बाबर के साथ गए हैं, मैं रिजवान के साथ जाऊंगा। और रही न्यूजीलैंड की बात, आप रचिन रविंद्रा के साथ गए हैं। यदि विलियमसन खेलते हैं, मैं विलियमसन के साथ जाऊंगा। या टॉम नहीं खेलते, टॉम लेथम के साथ। नहीं तो विलियमसन आएंगे तो रचिन रविंद्रा को बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई थिंक जिमी निशम बाहर जाएंगे। नहीं, विलियम भी बाहर जा सकते हैं। हाँ, विलियम भी जा सकते हैं, राइट। तो और निशम भी। खैर, अब हम अगले मैच की बात करते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है आपको? आई थिंक इंग्लैंड विल बी बिट फेवरेट टुडे, क्योंकि उनके पास देखिए कुछ है नहीं अब करने के लिए सिवाय फेयरलेस क्रिकेट खेलने के। तो अगर वो खेलते हैं और वो चल गया तो इंग्लैंड विल बी इन अ ड्राइविंग सीट। इंग्लैंड। अच्छा, 2 खिलाड़ी बताइए, दोनों टीम से एक खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया से I'll not go with Travis Head because एक बार हो गया। डेविड वार्नर has played good knocks। ड्यू है, स्मिथ का ड्यू है। आई थिंक स्मिथ का दिन होगा आज। और इंग्लैंड से it will be जॉनी बेस्ट्रो। मेरे को लगता है इंग्लैंड से मलान, और ऑस्ट्रेलिया से मार्नस लगुशेन। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा कर ले, शो लंबा हो रहा है। खैर, आज एक जानकारी आपको और मैं बताना चाहता हूँ। इस समय विराट कोहली दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। यदि हम गोल्डन बैट की बात करें, सबसे ज्यादा रनों की बात करें, तो विराट कोहली ने 442 रन बना लिए हैं 7 पारियों में। वहीं क्विंटन डीकॉक ने 7 पारियों में 546 रन बनाए हैं।
और डेविड वार्नर के 413 रन हैं 6 पारियों में, वो भी आज खेलेंगे। वहीं पे रचिन रविंद्रा जो चौथे नंबर पे हैं, क्योंकि वार्नर तीसरे पे हो गए हैं, तो रचिन रविंद्रा के रचिन रविंद्रा के 7 मैचों में 415 रन हैं। तो ये दोनों लोग आज अपनी प्रतिभा की आजमाइश करेंगे। तो अब बताइए किसको आगे जाते हुए देख रहे हैं, वार्नर, रचिन रविंद्रा, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से? आज के मैच में मैं रचिन रविंद्रा के साथ हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, आई विश कि वो आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से। एक चीज है, न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैच ही इतना इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड क्या सच में अफ्रीका से हारने के बाद, क्या सच में इतनी आसानी से इतना बुरा हश्र हो जाना, क्या आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मैंने कहा जितने भी क्रिकेट पंडित होंगे जो मुझसे कई गुना एक्सपीरियंस्ड होंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। हर व्यक्ति यही कह रहा था न्यूजीलैंड पक्का जाएगी। हाँ, वो एक कंटेंडर्स थी भाई। वहां अफ्रीका ने एंट्री मारी, न्यूजीलैंड पीछे हुई, और फिर जो अफ्रीका से मैच हारी न्यूजीलैंड, वहीं से कहीं ना कहीं सेटबैक हो गया उनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया रन रेट में आगे आ गई और न्यूजीलैंड चौथे पे खिसक गई। खैर, मुझे लगता है काफी चर्चा हो चुकी है और अब हम लोगों को यहीं पे विदा लेनी चाहिए। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे फिर अगले अंक में। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, सुप्रभात, गुड बाय।